Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 102 as I'll be continuing with unit 26 mixed bag. Students, please take out your English grammar book. Turn the page to page number 102 as I'll be continuing with the exercise of unit 26 mixed bag. Students, in my last video I had completed exercise 3, that is choose the correct option, and I started with exercise 4, join these sentences using given conjunctions. Now today I'll be revising the first 4 sentences and then I'll be starting with the 5th one. Students, the first one. The cat chased the rat. The cat caught the rat. In this, what we need to do? We need to join both these sentences using the conjunction and. And all of us are aware that conjunctions are joining words. They join words, phrases, group of words or sentences. Fine? So now, the first sentence is the cat chased the rat and the second sentence is the cat caught the rat. तो हमको इसको बेटा and से join करना है. तो हमारा sentence क्या हो जाएगा? जो words बार बार repeat हो रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे. तो हम लिखेंगे the cat chased and caught the rat. The cat chased and caught the rat. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है? The cat chased and caught the rat. Then the second one. But इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स दोनों सेंटेंसेस में सेम है, रिपीट हो रहे हैं, तो हम सेंटेंस को शॉर्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग यूजिंग द कंजंक्शन एंड हम कब यूज करते हैं? जब हम सिमिलर क्वालिटीज वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम जॉइन करते हैं. सो हमारा सेंटेंस द कैट रिपीट हो रहा था, द रैट भी रिपीट हो रहा था, तो हमने एक ही बार लिखा. तो द कैट चेस्ड एंड कॉट द रैट. नाउ द सेकंड वन. ही वाज टायर्ड, ही वेंट टू बेड. इसका क्या हो जाएगा? ही वाज टायर्ड सो फुल स्टॉप की जगह सो ही. अब ये वाला ई का एच जो है हम स्मॉल कर देंगे. सो ही वेंट टू बेड. ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड. नाउ द थर्ड. डू यू प्रिफर सिंगिंग? डू यू प्रिफर डांसिंग? दिस इज अ क्वेश्चन. तो हम लिखेंगे डू यू प्रिफर singing or dancing? We have joined 2 sentences using the conjunction or, and this is an interrogative sentence. This is a question. तो हमने वो वर्ड्स इसमें रिमूव कर दिए जो रिपीट हो रहा है. हमारा सेंटेंस क्या हो गया? डू यू प्रिफर सिंगिंग और डांसिंग. नाउ द फोर्थ वन. I opened the door, I went into the house. Now, I opened the door and went into the house. इसमें हमने एंड से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया. सो आई ओपन द डोर एंड वेंट इनटू द हाउस. फाइन. सो आई हैव अगेन रिवाइज द 4 sentences which I had done in my last video. Now I'm going to erase these sentences, students, and start with the 5th one. I hope everybody has written the first one. The cat chased and caught the rat. Second, he was tired so he went to bed. Third, do you prefer singing or dancing? And fourth, I opened the door and went into the house.
So now I'm going to erase and start with the fifth one. The fifth one is I gobbled. Gobble करना बिना चबाए कोई भी चीज खा जाना. I gobble all the food. I gobble all the food. I was hungry. These are the two sentences. और हमको इन्हें किससे ज्वाइन करना है? Because से. बेटा किससे हमको ज्वाइन करना है? Because. फाइन. हम बिकॉज कहाँ यूज करते हैं? जब हमको रीजन शो करना होता है. ठीक है. तो हमारा सेंटेंस होगा आई gobbled all the food. I gobbled all the food because I was hungry. ये हमने दोनों सेंटेंस को किससे ज्वाइन किया है? विद द कंजक्शन बिकॉज. ठीक है. अब यहाँ पे फुल स्टॉप था. फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लिखना है? बिकॉज. ठीक है. और बिकॉज के बाद द सेम सेंटेंस एंड कीपिंग इन माइंड दैट सिंगल आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आई गॉबल ऑल द फूड because I was hungry. I gobbled all the food because I was hungry. Clear? Now, I gobbled all the food because I was hungry. I hope everybody has written. Now, the sixth one. They waited for the doctor. They waited for the doctor. The doctor did not come. और ये हमें किससे ज्वाइन करना है? बट से. ये हमें किससे ज्वाइन करना है? बट से. क्लियर? सो दे वेटेड फॉर द डॉक्टर डिड नॉट कम. ये हम बट से ज्वाइन करेंगे. हम बट कहाँ यूज करते हैं? जहां पे कॉन्ट्रास्ट हो. हिंदी में हम जहां लेकिन बोलते हैं वहां पे बट होगा. ठीक है. सो नाउ आवर सेंटेंस विल बी दे waited for the doctor but फुल स्टॉप की जगह हम क्या लेंगे? बट. अब यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद ये टी है तो कैपिटल में. अब यहाँ पे बट के बाद हम इस टी को जब लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम? स्मॉल. ध्यान, इस टी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है. ये फुल स्टॉप के बाद था तो द का टी कैपिटल था. अब यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आया है तो द का टी स्मॉल हो गया. सो आई वेटेड फॉर द डॉक्टर बट द डॉक्टर डिड नॉट कम. So with this we have finished exercise 4 of conjunction. ठीक है. Let's revise once again. Fifth one. I gobbled all the food. I was hungry. And we need to join both these sentences using because. तो जहाँ पे full stop था, ठीक है, I gobbled all the food. Full stop की जगह हम conjunction लिखेंगे and we'll underline. ठीक है. I was hungry. यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिंगल आई है बेटा, that is always written capital. सिंगल आई अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में गलत हो जाएगा. Single I is always written in capital letters. This you all need to keep in mind.
मैं बच्चों को देखती हूँ वो छोटे लिखते हैं और अपना सेंटेंस लिख देते हैं, फिर क्या होता है पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट सिंगल आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. फाइन. नाउ यहाँ पे हमने बिकॉज लिखा क्योंकि सिंगल आई हमेशा कैपिटल रहता है, इसे कैपिटल ही रहेगा. एंड द सेम सेंटेंस एज इट इज एट द एंड फुल स्टॉप. नाउ द सिक्स्थ वन, दे वेटेड फॉर द डॉक्टर, द डॉक्टर डिड नॉट कम. इसको हमें किससे ज्वाइन करना है? बट से. तो हमारा सेंटेंस हो गया दे वेटेड फॉर द डॉक्टर. फुल स्टॉप की जगह हमने क्या लगाया? कंजक्शन बट. और यहाँ पे द कटी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि बट के बाद आ रहा है, फुल स्टॉप के बाद नहीं आ रहा है, तो ये स्मॉल हो जाएगा. बट द डॉक्टर डिड नॉट कम. So I hope students, all of you have written both these sentences. So now I'm going to erase and start with exercise 5. I think that is based on past tense. Now, exercise 5 on past tense. Yeah. Now, exercise 5 is complete the story with the help of past form of the given verbs. Complete the story with the help of past form of given verbs. Now, first let's look at the story. You can see the two pictures, है ना? आपको ये सबको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, है ना? सभी ने वो दी सार ग्रेप्स वाली स्टोरी सुनी होगी, है ना? कि one day a fox saw a bunch of grapes hanging on the vine and the fox was hungry, है ना? फॉक्स ने ग्रेप्स को वाइन पे लटकते हुए देखा. फॉक्स को बहुत भूख लग रही थी. सो द फॉक्स ऐसे स्मेल किया, सो मुंह में पानी आने लग गया कि वाओ द ग्रेप्स सीम टू बी वेरी यमी एंड द फॉक्स वांटेड टू ईट द एंटायर बंच ऑफ ग्रेप्स. बट व्हाट हैपेंड? द ग्रेप्स वर हाई ऑन द वाइन. ग्रेप्स यू कैन सी इन द पिक्चर, वो वाइन के ऊपर लटके हुए हैं. ठीक है. द फॉक्स वो जंप करने लग गई. वो जंप करने लग गई टू गेट द ग्रेप्स बट शी कुडंट रीच द वाइन, है ना? तो जब उसको अंगूर मिले नहीं तो उसने क्या कहा? फॉक्स ने क्या बहाना बनाया? द ग्रेप्स आर सार. ग्रेप्स तो सार मतलब खट्टे. एंड देन शी वॉकड अवे. फाइन. सो बेटा ये स्टोरी हमको पास्ट फॉर्म में करनी है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट दी स्टोरी, हम जो है वर्ब्स एंड देयर पास्ट फॉर्म्स पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. वर्ब एंड देयर पास्ट फॉर्म. ठीक है. हम वर्ब और पहले उनका पास्ट फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. ताकि हमको पता लगे कि कौन से वर्ब में कौन सा पास्ट फॉर्म लगेगा, है ना? अब इसमें जो ब्रैकेट के वर्ब्स हैं हम उनको पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं. यू कैन सी ब्रैकेट में बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं. ठीक है. ना सी का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? सॉ. सॉ. सी का पास्ट फॉर्म क्या है? सॉ. SEEC is SAW, saw. Then the second one is look. Look का पास्ट फॉर्म क्या है बेटा? looked. LOOKED, looked. Then third is raise. RAISE, raise.
रेस मतलब कोई भी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है। और रेस का पास्ट फॉर्म क्या है? रेस्ड, RAISED, रेस्ड, ठीक है। सो नाउ अब फोर्थ में है बी। बी का अब आपको ये मुझे समझाना है। बी में बेटा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर। ये वॉज और वर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो आपका इज और आर होता है ना। लेकिन पास्ट फॉर्म में बी का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। ये आपको बेटा याद रखना है कि बी में वॉज और वर हमको यूज करेंगे। देन फिफ्थ वन इज वांट। वांट का पास्ट फॉर्म क्या है बेटा? वांटेड। वांट का पास्ट फॉर्म क्या है? वांटेड। नाउ over here also I'll write word and their past form. Now the sixth one is again B. B तो मैंने यहाँ पे was और word already लिख दिया है, so I'm not going to repeat. Then jump. JUMP, jump. जंप का पास्ट फॉर्म क्या होता है? जम्प। JUMPED, jumped. Then can, could. कैन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड। एंड नेक्स्ट वन से का sang. And then the last one is walk. walk का हम क्या लिखेंगे? walked. Fine? Okay. तो ये इसके पास्ट फॉर्म्स हैं जो हमें याद करने हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज SEEC। सी का पास्ट फॉर्म क्या है? SAW, सॉ। सेकेंड LOOK, लुक। लुक का पास्ट फॉर्म क्या है? लुक्ड। थर्ड RAISE, रेज। रेज मतलब किस ऊपर करना, तो रेज का जो पास्ट फॉर्म वो क्या है? RAISED, रेज्ड। देन बी का जो पास्ट फॉर्म होता है बेटा या तो वॉज होता है या वर होता है, ठीक है। वॉज कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और वर कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, है ना। और प्रेजेंट टेंस में अगर बी लिखना है तो हम उसको इज और आर लिखेंगे। इज का जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और आर कब? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। फिफ्थ WANT, want। want का पास्ट टेंस क्या हो जाता है? wanted, दैट इज WANTED। सिक्स इज jump, JUMP, jump। और jump का पास्ट फॉर्म क्या है? jump, दैट इज JUMPED, jump। सेवेंथ इज can, CAN, can। can का क्या होता है? could, दैट इज COULD, could। एट SAY, say का क्या है? said, that is SAID, said। and the ninth one walk, WALK, walk। walk का walked, WALKED, walked। तो ये पास्ट फॉर्म्स आपको आने चाहिए। और बेटा कुछ पास्ट फॉर्म्स है जो चेंज नहीं होते, जैसे put remains put only, cut remains cut only, shut remains shut only। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ पास्ट फॉर्म्स एकदम चेंज नहीं होते। क्लियर? सो अभी ये सबको आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी। अब हमको पास्ट फॉर्म पता चल गया, सो नाउ वी स्टार्ट विद द स्टोरी, ठीक है। वंस अगेन, सी सॉ, लुक लुक्ड, रेज रेज्ड, बी वॉज वर। वॉज जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर जब सब्जेक्ट प्लूरल है। want, wanted, jump, jumped, can, could, say,
sat, walk, walked. Yeah? Now let's start with the story of the fox. Now, स्टोरी क्या है? फाइन, अब हम स्टोरी स्टार्ट. One day a fox dash see some grapes. One day a fox dash some grapes. ठीक है? So one day a fox, C का पास फॉर्म क्या हो जाएगा? saw. C का पास फॉर्म क्या हो जाएगा? saw. So one day a fox saw some grapes. You can see in the picture, fox is looking at the grapes, isn't it? सबको पिक्चर में दिख रहा है? One day a fox saw some grapes. C का पास फॉर्म हमको लिखना है क्योंकि हमारे हेडिंग में दिया है that complete the story with the help of the past form of the given verbs. Now, the next sentence. He dash, bracket में जो verb है, that is look at them greedily. He dash at them greedily. वर्ब कौन सा दिया है? ब्रैकेट में look. look का पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? looked. L-O-O-K-E-D, looked. So he looked at them greedily. Then the next one. He dash raise his nose and sniffed. ओके, अभी सारे बच्चों को स्निफ्ट का मतलब पता है कि नहीं? SNIFFED, है ना? आपको पता है ना कि आपने डॉग्स को कभी देखा है? ऐसे करके वो सूंघने की कोशिश करते हैं. एंड डॉग्स आर वेरी गुड एट स्मेलिंग. आपको पता है ना, आर्मी में, पुलिस में डॉग्स को रखा जाता है. वो डिटेक्ट, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एक्सप्लोसिव डिटेक्ट कर लेते. अभी आपने सबने न्यूज़ में सुना होगा कि आर्मी में 2 डॉग्स ट्रेंड हैं. वन इज आई थिंक कॉकर स्पैनियल एंड अदर इज सम इंडियन ब्रीड, जो कोरोना वायरस सैंपल से डिटेक्ट कर ले रहे कि किसको कोरोना वायरस है कि नहीं. जो ऐसे उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है और ऐसे करके जो वो सूंघते हैं एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्निफ्ट. ठीक है, तो सूंघने को हम स्निफ बोलते हैं. फाइन. सो द थर्ड सेंटेंस, ही डैश हिज नोज. और यहाँ पिक्चर में देखोगे कि वो जो फॉक्स है वो अपनी नोज ऐसे उठा के उसको ग्रेप्स को स्मेल करने की कोशिश कर रहा है. तो उठाने को क्या बोलेंगे? रेज. RAISED, raised. He raised his nose and sniffed. Fine. तो raise का past form क्या है? raised. Now, their smell dash, ब्रैकेट में B है, mouth, MOUTH, mouth watering. माउथ वाटरिंग मतलब इतने पके हुए ग्रेप्स की इतनी अच्छी स्मेल थी कि फॉक्स के मुंह में पानी आ गया. माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाना. ठीक है. सो देयर स्मेल, है ना? अब यहाँ पे देयर स्मेल, देयर किसके लिए यूज किया गया है? ग्रेप्स के लिए, है ना? और देयर स्मेल. अब स्मेल को हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे. ठीक है. सो देयर स्मेल के साथ हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे.
कौन सा बेटा? बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे पास में, वॉज। स्मेल को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान के वॉज हमने यूज किया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? Their smell was mouth-watering. That means कि जो ग्रेप्स की स्मेल थी वो माउथ-watering। पके हुए मैंगो की, ग्रेप्स की, जो राइट फ्रूट्स होते हैं उनकी स्मेल इज वेरी टेम्पटिंग, और सबके मुंह में स्मेल करके अच्छा मुंह में पानी आ जाता है। तो द फॉक्स जब उसने अच्छे राइट ग्रेप्स की स्मेल स्निफ की तो उसके भी मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी को क्या बोलते हैं? माउथ वाटरिंग। Then the next sentence is he dash want to eat those grapes. तो want के लिए हम क्या लिखेंगे? wanted. He wanted to eat those grapes. अब जब फॉक्स ने ग्रेप्स की स्मेल स्निफ की तो उसके मुंह में टेम्प्ट हो गया, माउथ वाटरिंग हो गया, एंड ही वांटेड टू ईट दोस ग्रेप्स। बट दे dash be high up in the one. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, प्लूरल है ना। यहाँ पे देयर स्मेल था, स्मेल के साथ हमने वॉज किया, बट यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो हम बी का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर। But they, W-E-R-E, were. But they were high up in the vine. So, he dash jump and dash jump again. But okay, so he dash and dash again. अब दोनों में वर्ब क्या है? जंप है। तो जंप का पास्ट फॉर्म क्या आता है? J-U-M-P-E-D, जंप। अगेन J-U-M-P-E-D, jump. So they jumped, sorry, he jumped and jumped again, but he dash can not reach them, but he cannot reach them. बेटा can का जो पास्ट फॉर्म है वो could होता है, C-O-U-L-D, could, but he could not reach them. At last he dash say, comma, open inverted comma, the grapes are sour. sour मतलब खट्टे। अब उसको अंगूर मिला नहीं तो उसने क्या बोला? The grapes are sour, and close inverted comma, and dash walk away. Right? अब यहाँ पे देखेंगे। So at last he said. Say का पास्ट फॉर्म क्या है? Said. S-A-I-D, said. The grapes are sour within inverted commas and walked away. Walk का past tense walked. Clear? So with this we have finished exercise 5.
Now once again I'm going to read this for you. Fine. So, one day a fox saw some grapes. He looked at them greedily. He raised his nose and sniffed. Their smell was mouth-watering. He wanted to eat those grapes, but they were high up in the vine. He jumped and jumped again, but he could not reach them, and at last he said, "The grapes are sour," and walked away. So, with this, I finished exercise 5, students. That's all for today. Do learn and revise all the taught units. Thank you, students. Have a good day ahead.